الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ناظرین و سامعین قرآن مجید کے تحقیقی سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کے 19ویں پارے کا مطالعہ کریں گے جو 3 عظیم سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفرقان آیات 21 سے 77، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، ما ترجمہ، تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، معارف القرآن، تفسیر جلالین، روح المعانی۔ واقعات، احکام، عملی پیغام اور آیات کی ترتیب سے تفصیلی وضاحت۔ سورۃ الفرقان مکی سورت۔ نام کا مطلب الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ پارہ 19 میں حصہ، آیت 21 سے 77، پوری سورت کا آخری حصہ۔ مرکزی موضوع نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، مشرکین کے اعتراضات کا جواب، کائنات میں اللہ کی نشانیاں اور عباد الرحمن کا نقش عمل۔ موضوع 1، مشرکین مکہ کے اعتراضات اور قرآنی جوابات، آیات 21 سے 32۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو رد کرنے کے لیے کئی اعتراضات اٹھائے۔ قرآن نے ہر اعتراض کا مدلل اور قطعی جواب دیا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا۔ الفرقان 21۔ ترجمہ، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اعتراض 1، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ جس دن فرشتے آئیں گے وہ عذاب کا دن ہوگا، خوشی کا نہیں۔ مجرموں کے لیے یہ دن خیر کا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جواب دیا، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ یہ مطالبہ اصل میں نبوت سے انکار کی ہٹ دھرمی تھی، ان کا مقصد سمجھنا نہیں تھا بلکہ انکار کے لیے بہانے ڈھونڈنا تھا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل إليه ملک۔ الفرقان 7۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اعتراض 2، رسول انسان کیوں؟ اللہ نے جواب دیا، تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے وہ سب انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے۔ نبوت روح کا مقام ہے، جسم کی ساخت میں تبدیلی لازمی نہیں۔ اگر رسول انسان نہ ہوتا تو لوگ کہتے یہ ہم جیسا نہیں، ہم اس کی پیروی کیسے کریں؟ انسانی رسول انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہمارے لیے سبق، آج بھی لوگ اسلام کو رد کرنے کے لیے بے بنیاد اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ ہر اعتراض کا جواب دو، مایوس نہ ہو۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ الفرقان 4۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا یہ تو بس ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھڑا ہے اور دوسروں نے اس میں مدد کی۔ اعتراض 3، قرآن انسانی تصنیف ہے۔ اللہ نے جواب دیا، پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ یہ چیلنج آج بھی قائم ہے۔ 1400 سال میں کوئی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا۔ یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ موضوع 2، قیامت کا منظر اور مجرموں کی حسرت، آیات 24 سے 30۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ الفرقان 27۔ ترجمہ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اپنایا ہوتا۔ ہاتھ کاٹنا عرب محاورے میں شدید ندامت کی علامت ہے۔ یہ ندامت اس وقت ہوگی جب تمام دروازے بند ہو جائیں گے، نہ توبہ نہ رجوع۔ دنیا میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آخرت میں صرف پچھتاوا۔ آج کا لمحہ قیمتی ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ الفرقان 28۔ ترجمہ، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ فلانن قرآن نے نام نہیں لیا کیونکہ یہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے جس نے برے دوست کی وجہ سے ہدایت سے منہ پھیرا۔ بری صحبت آخرت میں سب سے بڑی حسرت کا سبب بنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس دیکھو کہ تمہارا دوست کون ہے۔ ابو داؤد۔ سوشل میڈیا کے دور میں دوست کا دائرہ وسیع ہوا ہے، ہر قسم کی صحبت سے احتیاط لازم ہے۔ موضوع 3، کائنات میں اللہ کے قدرت کی نشانیاں، آیات 45 سے 55۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا۔ الفرقان 45۔ ترجمہ،
क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साए को कैसे फैलाया? अगर वो चाहता तो उसे साकिन कर देता। वहुवल्लज़ी अरसल अर्रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिह व अंज़लना मिनस्समाई माअन तहूरा। अल-फुरक़ान 48। तर्जुमा। और वही है जिसने हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी देकर भेजा और हमने आसमान से पाक पानी उतारा। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़ख़ा। अल-फुरक़ान 53। तर्जुमा। और वही है जिसने दो समंदर मिलाए, ये मीठा और प्यास बुझाने वाला और ये खारा और कड़वा, और इनके दरमियान एक आड़ रखी। कुरानी एजाज़, मदीद साइंस की तस्दीक। बरज़ख़ आड़ से मुराद वो गैर मरई रुकावट है जो मीठे और खारे पानी को मिलने से रोकती है। साइंस ने 20वीं सदी में दरियाफ्त किया कि समंदर के संगम पर हेलोक्लाइन नामी एक कुदरती परत होती है जो दोनों पानियों को आपस में मिलने से रोकती है। तहूर, बहुत पाक करने वाला। आज साइंस ने साबित किया है कि बारिश का पानी फिज़ा की आलूदगी को धोकर लाता है। साया, हवा, पानी, ये सब अल्लाह की रुबूबियत की दलीलें हैं जो हर रोज़ आंखों के सामने हैं, लेकिन गौर करने वाले कम हैं। मौजू 4, इबादुर रहमान की 10 सिफ़ात, मुकम्मल नक्शे ज़िंदगी। आयात 63 से 77। ये आयात पारा 19 का सबसे कीमती और अमली हिस्सा हैं। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों की 10 सिफ़ात बयान फरमाई हैं। ये एक मुकम्मल इंसानी दस्तूर है। सिफ़त 1, वक़ार से चलना। अल-फुरक़ान 63। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल-फुरक़ान 63। तर्जुमा। रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी और वक़ार के साथ चलते हैं। होनन, तकब्बुर से पाक चाल है, न फ़िरौनी अकड़ न बेवक़ारी। इसमें खुददारी और इनकिसारी का हसीन इम्तजाज है। अमली सबक, अपनी चाल, बात और अंदाज में तकब्बुर से बचें। सिफ़त 2, जाहिलों से सलामती। अल-फुरक़ान 63। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल-फुरक़ान 63। तर्जुमा। और जब जाहिल लोग उनसे बात करें तो वो कहते हैं सलाम। सलामन का मतलब सिर्फ सलाम करना नहीं, बल्कि ऐसी बात कहना जिसमें झगड़ा न हो। वो गाली का जवाब गाली से नहीं देते। आज के सोशल मीडिया दौर में ये सबसे अहम सिफ़त है। सिफ़त 3, रात की इबादत। अल-फुरक़ान 64। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल-फुरक़ान 64। तर्जुमा। और जो अपने रब के लिए सजदा करते और क़ियाम करते हुए रात गुजारते हैं। तहज्जुद की तरफ इशारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज फ़र्ज़ के बाद सबसे अफजल नमाज है। दिन में कारोबार, रात में रब से मुलाकात, ये तवाज़ुन मोमिन की पहचान है। सिफ़त 4, अज़ाब से पनाह। अल-फुरक़ान 65 से 66। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। अल-फुरक़ान 65-66। तर्जुमा। और जो कहते हैं, ए रब, हमसे जहन्नुम का अज़ाब फेर दे, इसका अज़ाब लाजिम रहने वाला है। गरामन, लाजिम और चिमटा रहने वाला अज़ाब। इबादुर रहमान नेकी करते हैं फिर भी खाइफ रहते हैं। ये खौफ और रजा का वो तवाज़ुन है जो मोमिन की अलामत है। सिफ़त 5, एतदाल खर्च। अल-फुरक़ान 67। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तिरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। अल-फुरक़ान 67। तर्जुमा। जब खर्च करते हैं न फ़ुज़ूल खर्ची करते हैं न बुख़्ल, बल्कि दोनों के दरमियान एतदाल होता है। ये इस्लामी माशियात का बुनियादी उसूल है। क़वाम वो दरमियानी रास्ता है जो ज़ाती ज़रूरियात, ख़ानदान और राह खुदा तीनों को जगह दे। बेतहाशा ख़रीदारी इसराफ़ है, हक़ न देना तक़दीर। सिफ़त 6, शिर्क, क़त्ल, ज़िना से इज्तिनाब। अल-फुरक़ान 68 से 70। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़नून। अल-फुरक़ान 68 से 70। तर्जुमा। जो अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारते, न किसी जान को नाहक़ कत्ल करते हैं और न ज़िना करते हैं। ये 3 कबीरा हैं। शिर्क, हक़ अल्लाह, क़त्ल, हक़ इंसान, ज़िना, हक़ मुआशरा। लेकिन तौबा की खुशखबरी भी है, अल्लाह बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। ये गुनाहगारों के लिए सबसे बड़ी बशारत है। सिफ़त 7, झूठ और लग़व से एराज़। अल-फुरक़ान 72। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। अल-फुरक़ान 72। तर्जुमा। और जो झूठी गवाही नहीं देते और जब बेहूदगी के पास से गुज़रते हैं तो शराफ़त से गुज़र जाते हैं। ज़ूर, झूठी गवाही, झूठी तारीफ़,
नाजायज़ महाफिल सब इसमें आते हैं। लग़्व से किरामन गुजरना, बुरी जगह रुक कर तमाशा नहीं देखते, आगे बढ़ जाते हैं। सिफत 8, कुरान पर गौर व फिक्र। अल-फुरक़ान 73। वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। अल-फुरक़ान 73। तर्जुमा, और जब उन्हें अपने रब की आयात से नसीहत की जाती है तो वो बहरे और अंधे होकर उस पर नहीं गिर पड़ते। ये आयत मुनाफिकाना ज़ाहिरदारी की नफ़ी है। रस्म के तौर पर कुरान सुनना और असर न लेना सुम्मन व उम्यानन है। इबादुर रहमान कुरान को समझ कर सुनते हैं और असर लेते हैं। सिफत 9, अहले खाना के लिए दुआ। अल-फुरक़ान 74। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल-फुरक़ान 74। तर्जुमा, ए रब, हमें अपनी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक दे और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना। क़ुर्रतुल आयुन, दीनी एतबार से नेक औलाद और बीवी जिनका ईमान और किरदार आँखों को ठंडक दे। इमामुल लिलमुत्तक़ीन, खिदमत खल्क़ की दुआ, पहले खुद नेक बनो फिर दूसरों के लिए काबिले इक़्तिदा। सिर्फ 10, जन्नत के आला दर्जात। उलाइका युज्ज़ूनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा। तर्जमा, यही लोग हैं जिन्हें उनके सब्र की वजह से जन्नत के आला दर्जात मिलेंगे और वहाँ खुशामदीद और सलाम से इस्तक़बाल होगा। अल-ग़ुरफ़ा, जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम जो सब्र के बदले मिलेगा। दुनिया में जिन सिफ़ात पर सब्र किया, वक़ार, रात की इबादत, एतदाल, इनका सिला जन्नत के बुलंद दर्जे हैं। सूरत अश-शुआरा, मक्की सूरत। नाम का मतलब अश-शुआरा, शायर। कुल आयात 227। मरकज़ी मौजू 7 अंबिया कराम की दावत और उनकी कौमों की तकज़ीब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और कुरान की सदाकत। सूरत का आगाज़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। आयात 1 से 9। तौसीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। सूरत अश-शुआरा 1-2। तर्जमा, तौसीम, ये रोशन किताब की आयात हैं। लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। सूरत अश-शुआरा 3। तर्जमा, शायद आप इस गम में अपनी जान हलाक कर लें कि ये लोग ईमान नहीं लाते। बाख़े का मतलब गर्दन तोड़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के कुफ्र पर इस कदर गमज़दा थे कि जान देने को तैयार थे। अल्लाह ने तसल्ली दी, हिदायत सिर्फ मेरे इख्तियार में है, आपका काम पहुंचाना है, हिदायत देना नहीं। दाइए दीन के लिए सबक, मायूसी नहीं, अपना काम जारी रखो, नतीजा अल्लाह पर छोड़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का मुफस्सल वाक़या। आयात 10 से 68। ये वाक़या कुरान में सबसे ज़्यादा दोहराया गया है, हर बार नए पहलू से। सूरत अश-शुआरा में ये वाक़या सबसे ज़्यादा जुज़ियात के साथ बयान हुआ है। व इज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल कौम अज़्ज़ालिमीन कौम फ़िरऔन। सूरत अश-शुआरा 10-11। तर्जमा, और जब आपके रब ने मूसा को पुकारा कि ज़ालिम कौम फ़िरौन की कौम के पास जाओ। वाक़या के अहम मराहिल। मरहला 1, तूर पर निदा। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत दी और फ़िरौन के पास जाने का हुक्म दिया। मरहला 2, मूसा अलैहिस्सलाम की दरखास्त, मेरी ज़बान गिरहदार है, हारून को भी भेजो। अल्लाह ने दोनों को भेजा, ये ताउन बाहमी की अहमियत है। मरहला 3, फ़िरौन का ताना, क्या तुम यही मूसा हो जिसे हमने पाला? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, परवरिश का एहसान रिसालत से बड़ा नहीं होता। मरहला 4, मोजिज़ात, असा का अज़दहा और यदे बैज़ा। फ़िरौन ने कहा, ये जादू है। मरहला 5, जादूगरों का मुकाबला और ईमान। जादूगरों ने हक़ देखा तो सजदे में गिर गए। फ़िरौन की तमाम धमकियां बेअसर रहीं। क़ालू ला दैरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। सूरत अश-शुआरा 50। तर्जमा, उन्होंने कहा, कोई नुकसान नहीं, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। ये कुरान का सबसे ताकतवर ईमानी जुमला है। चंद लम्हे पहले ये जादूगर फ़िरौन के हामी थे, एक लम्हे में बदल गए और मौत की धमकी पर ला दैरा कहा। सबक, हक़ को पहचान कर कबूल करने में देर मत करो, तौबा और रुजू का लम्हा कीमती है। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फ़नफ़लक़ फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। सूरत अश-शुआरा 63। तर्जमा, पस हमने मूसा को वही की कि अपना आसा समुंदर पर मारो, पस वो फट गया और हर हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह हो गया। बनी इसराइल 12 कबीलों में थे, 12 रास्ते बने। फ़िरौन ने पीछा किया,
جب اس کی پوری فوج سمندر میں داخل ہوئی تو پانی واپس آ گیا، فرعون کی پوری فوج غرق ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور توحید کی دلیل، آیات 69 سے 104۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، سورۃ الشعراء 70-71۔ ترجمہ: جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس ہم ان کے بنیاد بن کر بیٹھتے ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، سورۃ الشعراء 78-80۔ ترجمہ: جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی سب سے جامع دلیل پیش کی۔ خالق، رازق، شافی، محیی، ممیت، دین کا مالک سب اللہ ہے۔ پھر بتوں سے پوچھا کیا یہ سنتے ہیں، نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ جواب نفی میں تھا۔ اس کا مطلب عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، سورۃ الشعراء 83۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال، جاہ یا طاقت نہیں مانگی، علم، ہدایت اور صالح لوگوں کی صحبت مانگی۔ یہ انبیاء کی دعاؤں کا انداز سوال ہے۔ اللہ سے آخرت کا سوال کرو، دنیا آپ ہی آ جاتی ہے۔ 5 انبیاء کرام مشترک دعوت اور تکذیب، آیات 105 سے 191۔ سورۃ الشعراء کی سب سے نمایاں خصوصیت، 5 انبیاء کرام کی دعوت کے الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ یہ یکسانیت بتاتی ہے کہ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا۔ نبی، قوم اور آیات۔ نوح علیہ السلام، قوم نوح، آیات 105 سے 122۔ بنیادی جرم، بت پرستی، تکذیب رسول۔ عذاب، طوفان نوح، غرق۔ ہود علیہ السلام، قوم عاد، آیات 123 سے 140۔ بنیادی جرم، تکبر، آبا کی اندھی تقلید۔ عذاب، ہلاکت خیز تیز ہوا۔ صالح علیہ السلام، سمود، آیات 141 سے 159۔ بنیادی جرم، اونٹنی کو ذبح کرنا۔ عذاب، زلزلہ اور چنگھاڑ۔ لوط علیہ السلام، قوم لوط، آیات 160 سے 175۔ بنیادی جرم، ہم جنسی، فاحشہ۔ عذاب، بستی پلٹ گئی، پتھراؤ۔ شعیب علیہ السلام، اصحاب الایکہ، آیات 176 سے 191۔ بنیادی جرم، ناپ تول میں کمی۔ عذاب، عذاب یوم الذلہ۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، سورۃ الشعراء، آیات 108، 126، 144، 163، 179۔ ترجمہ: پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تمام انبیاء کا مشترک جملہ۔ یہ جملہ ہر نبی نے دہرایا، اللہ سے ڈرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دنیا کی ہر قوم کو ایک ہی سچائی بتائی گئی، جنہوں نے مانا نجات پائی، جنہوں نے نہ مانا تباہ ہوئے۔ آج ہمارے سامنے وہی پیغام ہے، اللہ سے ڈرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام اور اخلاقی انحطاط، آیات 160 سے 175۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، الشعراء، آیت 165، 166۔ ترجمہ: کیا تم تمام جہانوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے پیدا کیا؟ قوم لوط کا سب سے بڑا جرم ہم جنسی تھا۔ قرآن نے اسے فاحشہ کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا تم شہر سے نکل جاؤ۔ اللہ نے ان کی پوری بستی پلٹ دی، جو آج بحر مردار کی صورت میں موجود ہے، اور اس خطے میں آج تک کچھ نہیں اگتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور تجارتی اخلاقیات، آیات 176 سے 191۔ اوفوا القیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، الشعراء، آیت 181، 182۔ ترجمہ: ناپ پورا کرو اور نقصان دینے والوں میں سے مت بنو، اور سیدھے ترازو سے تولو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم ناپ تول میں کمی تھا۔ آج یہ جرم بہت سی شکلوں میں ہے: کاروباری دھوکہ دہی، ملاوٹ، ٹیکس چوری، جال سازی،
रिश्वत, घटिया माल की आला कीमत। कुरान ने इसे इतना संगीन करार दिया कि इस पर पूरी कौम तबाह हुई। नबी का इरशाद है, ताजिर क़यामत के दिन फाजिरों के साथ उठाए जाएंगे, सिवाय उनके जो अल्लाह से डरें, सच बोलें और साबित करें। तिर्मिज़ी। वही की हकीकत और शुआरा का जिक्र, आयात 192 से 227। व इन्नहू लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। अश्शुआरा, आयात 192, 194। तर्जुमा। और ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है, इसे अमानतदार रूह यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आई आपके दिल पर, ताकि आप डराने वालों में से हों। वही का मुकम्मल सिलसिला, अल्लाह ताला, जिब्राईल, रूहुल अमीन, क़ल्ब नबी, लोगों तक। रूहुल अमीन का लक़ब जिब्राईल अलैहिस्सलाम की अमानत और काबिल भरोसा होने की दलील है। कुरान में कोई तहरीफ मुमकिन नहीं। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरा। अश्शुअरा, आयात 224, 227। तर्जुमा। और शुआरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं, सो सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और अल्लाह को बहुत याद किया। अल्लाह ने फहाशी और झूठ के शुआरा की मजम्मत की, लेकिन इस्तिस्ना दिया, वो शायर जो इस्लाम का दिफा करें, हक की तर्जुमानी करें और ज़िक्र इलाही करें, जैसे हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहुल कुदस तेरी मदद करता रहता है जब तक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करता रहे। आज का सबक, मीडिया, अदब, मौसीकी, सबका मय्यार ये है, क्या ये अल्लाह की याद से गाफिल करता है या उसकी तरफ ले जाता है। सूरतुन नमल, मक्की सूरत। नाम का मतलब अन-नमल, चूंटी। पारा 20 में हिस्सा, आयात 1 से 55। सूरत का पहला हिस्सा। कुल आयात 93। सूरत का आगाज हुरूफ मुक़त्तआत और कुरान का तारुफ, आयात 1 से 6। तौसीन, तिल्का आयातुल कुरआनी व किताबिन मुबीन हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन। अन-नमल, आयात 1 से 2। तर्जुमा। तौसीन, ये कुरान और रोशन किताब की आयात हैं, मोमिनों के लिए हिदायत और खुशखबरी। तौसीन हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं, इनका हकीकी इल्म अल्लाह के पास है। इनकी हिकमत यह है कि मुखातिब तवज्जो करे। ये हुदम व बुशरा उन लोगों के लिए है जो नमाज कायम करें, ज़कात दें और आखिरत पर यकीन रखें। कुरान सब के लिए है, लेकिन फ़ायदा मोमिन को होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत एक नए ज़ाविये से, आयात 7 से 14। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारन सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बस। अन-नमल, आयत 7। तर्जुमा। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा, मैंने आग देखी है, मैं वहां से कोई खबर लाऊंगा या रोशनी का एक अंगारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सर्द रात में रास्ता भूल गए थे, आग देखी तो रोशनी लेने गए। वहां अल्लाह ने निदा दी कि मैं अल्लाह हूं, अजीज और हकीम हूं। ये वो लम्हा था जब एक चरवाहा नबी बना। अल्लाह किसी को भी किसी वक्त अपनी बारगाह के लिए चुन सकता है। आयात 13 से 14। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए तो उन्होंने जुल्म और तकब्बुर की वजह से इनकार किया, जबकि दिल से उन्हें यकीन था। ये वो कुफ्र है जो सबसे मुहलिक है, जानते बूझते इनकार। मौजू 12, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का तारीखी वाक़या, आयात 15 से 44। ये कुरान का सबसे दिलचस्प, तफसीली और सबक आमोज़ वाक़या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, जानवरों से गुफ्तगू, हुदहुद की खबर और मलिका सबा का ईमान, ये सब एक अजीम दर्सगाह हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नेमतें, आयात 15 से 16। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमाना इल्मन व क़ाला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। अन-नमल, आयत 15। तर्जुमा। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया, उन्होंने कहा, तमाम तारीफ अल्लाह की जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्लि शै। अन-नमल, आयत 16। तर्जुमा। और सुलेमान ने कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज़ दी गई है। दर्स, अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 4 खुसूसी नेमतें दीं। 1,
जानवरों की ज़बान समझना, मंतिक उत-तैर। 2. जिन्नात को उनके ताबे करना। 3. हवा को ताबे करना, सफ़र। 4. अजीम हुकूमत और सल्तनत। उन्होंने पहला जुमला ये कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अजीम नेमतें पाकर भी गुरूर नहीं, शुक्र किया। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत है। चूंटियों का वाक़या, आयात 18 से 19। सूरत का नाम इसी से। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जनूदुह। अन्नमल, आयत 18। तर्जुमा, एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल न दें। फ़तबस्सम दाहिकन मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर नअमतक। अन्नमल, आयत 19। तर्जुमा, पस सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराकर हंसे और फिर कहा, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं। दर्स, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की बात सुनकर हंसे, फिर फौरी शुक्र की दुआ मांगी। 3 बातें काबिले गौर हैं। 1. चूंटी ने जुल्म का खौफ जाहिर नहीं किया, सिर्फ एहतियात कही कि वो कुचल न दें, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंसाफ मशहूर था। 2. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पहला रद्द अमल दुआ थी, शुक्र नेमत की तौफीक दे। 3. कुरान ने चूंटी की बात को लफ्ज़न नकल किया। ये अल्लाह की कुदरत का इजहार है कि हर मखलूक अल्लाह की निशानी है। जदीद साइंस ने साबित किया है कि चूंटियां खबरदार करने का निज़ाम रखती हैं। कुरान ने ये 1400 साल पहले बयान किया। हुदहुद का वाक़या और मलका सबा, आयात 20 से 44। वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। अन्नमल 20। तर्जुमा, और सुलेमान ने परिंदों का जायज़ा लिया और कहा, मुझे हुदहुद क्यों नज़र नहीं आता, या वो गायब होने वालों में से है। क़ियादत का सबक, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात, इंसान, परिंदे सब थे, लेकिन एक छोटे से परिंदे की गैर हाज़िरी नोट की। अच्छा कायद हर फ़र्द का ख्याल रखता है, कोई अहमियत से खारिज नहीं होता। फ़मकसा गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुक मिन सबइम बिनबइन यक़ीनीन। अन्नमल 22। तर्जुमा, थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया और कहा, मैंने वो कुछ जाना जो आपने नहीं जाना, मैं सबा से यकीनी खबर लेकर आया हूँ। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। अन्नमल 23। तर्जुमा, मैंने एक औरत को पाया जो उन पर हुकूमत करती है और उसे हर चीज़ दी गई है और उसका तख्त बड़ा अजीम है। हुदहुद की खबर के अहम लुकात। 1. मलिका सबा की हुकूमत। वो यमन के इलाके सबा की मलिका थी, तारीख में उसे बिल्कीस का नाम मिलता है। 2. सूरज की इबादत। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्स। वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते थे। 3. हुदहुद का तबसरा। शैतान ने उनके आमाल उन्हें खूबसूरत दिखाए। बुतपरस्ती और शिर्क की यही बुनियाद है। हुदहुद सिर्फ खबर नहीं लाया, तज्जिया भी किया। ये बताता है कि छोटी सी मखलूक को भी अल्लाह ने तौहीद का शऊर दिया है। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िही इलैहिम थुम्म तवल्ल अन्हुम फ़न्ज़ुर माज़ा यरजिऊन। अन्नमल 28। तर्जुमा, ये मेरा ख़त ले जाओ और उन्हें दे दो, फिर वहाँ से पीछे हट जाओ और देखो वो क्या जवाब देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त सियासी हिकमत अमली। ख़त का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुआ। ये वो पहला ख़त है जिसका जिक्र कुरान में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा, मेरे मुकाबले में ना आओ और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। सिफारती सबक। ताकत के बावजूद गुफ्तगू निशीद का रास्ता खुला रखा, जंग आखिरी ऑप्शन है। मलिका सबा की हिकमत और मुशावरत। आयात 29 से 35। क़ालत या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। अन्नमल 29। तर्जुमा, उसने कहा, ए सरदारों, मुझे मेरे मामले में राय दो, मैं कोई मामला उस वक्त तक तय नहीं करती जब तक तुम हाजिर न हो। इस्लामी हुक्मरानी का उसूल। मलिका सबा मुशरिक थी, लेकिन उसके तर्ज़ हुक्मरानी में मुशावरत का उसूल मौजूद था। इस्लाम ने शूरा को फ़र्ज़ करार दिया। कुरान ने फरमाया, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। यहाँ कुरान ने एक गैर मुस्लिम मलिका के इस अमल को नमूने के तौर पर पेश किया। ये इस्लाम की वुसअत नज़र है। अमली सबक। हर जिम्मेदार, घर का सरबराह, दफ्तर का अफसर, मुल्क का हाकिम मुशावरत करे।
ملکہ सबा का दरबार में आना और तख्त सुलेमान आयात 38 से 44 قال या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन अन्नम्ल 38 तर्जुमा सुलेमान ने कहा, ए सरदारों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है कब्ल इसके कि वो लोग मुसलमान होकर मेरे पास आएं। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैक तर्फ़ुक अन्नम्ल 40 तर्जुमा उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, मैं उसे आपके पास लाता हूँ कब्ल इसके कि आपकी पलक झपके। जिसके पास किताब का इल्म था। बेशतर मुफस्सिरीन कहते हैं ये आसिफ बिन बरखिया थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे और इसमें आज़म जानते थे। पलक झपकने से पहले यमन से शाम तक तख्त आ गया। ये अल्लाह की कुदरत है जो इल्म किताब वालों को हासिल होती है। अहम पैगाम, इल्म कुरान और इल्म इलाही वो ताकत है जो मादी क़ुव्वत से बड़ी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द अमल, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, शुक्र गुरूर नहीं। मलिका सबा का ईमान आयत 44 क़ील लहा दुख़ुलिस सर्ह फ़लम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन व कशफ़त लिसाक़ैहा अन्नम्ल 44 तर्जुमा उससे कहा गया महल में दाखिल हो। जब उसने देखा तो उसे पानी समझा और अपनी पिंडलियां नंगी कर लीं। क़ालत रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अन्नम्ल 44 तर्जुमा उसने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरे तस्लीम खम करती हूँ। शीशे का फर्श पानी लगा तो उसका वहम टूट गया। इसी तरह जब इंसान को हकीकत नज़र आती है तो दुनियावी वहम और बातिल अकायद टूट जाते हैं। ज़ुल्मतु नफ़्सी, मैंने अपने आप पर जुल्म किया। शिर्क और गुमराही इंसान के अपने नफ्स पर जुल्म है। अस्लमतु, मैंने इस्लाम कबूल किया। ईमान लाने में देर की, लेकिन जब हक वाज़े हुआ तो फौरी ईमान लाई। ईमान का ये अंदाज़ काबिल तक़लीद है, इक़रार के मैं गलत था और रुजू के अब मैं हक पर हूँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, ऊँटनी और समूद की तबाही आयात 45 से 53 वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन अअबुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ानि यख़्तसिमून अन्नम्ल 45 तर्जुमा और हमने समूद के पास उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, बस फौरी तौर पर वो दो ग्रोह बनकर झगड़ने लगे। जब भी हक़ आया दो ग्रोह बने, मोमिन और काफिर। आज भी यही सूरत हाल है। इस्लाम की दावत पर कौम तक़सीम होती है। ये सुन्नत इलाही है, दाई मायूस ना हो। ऊँटनी का वाक़या, कौम समूद को अल्लाह की ऊँटनी दी गई, उन्होंने उसे ज़बह कर दिया। 3 दिन बाद अज़ाब आया। सीहा यानी हलाक कुन चिंखाड़ ने सब को तबाह कर दिया। क़यामत की निशानियाँ और अल्लाह की कुदरत आयात 59 से 65 क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अन्नम्ल 59 तर्जुमा कह दीजिए, तमाम तारीफ़ अल्लाह की और सलाम हो उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया। अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू अन्नम्ल 62 तर्जुमा भला वो कौन है जो बेबस की पुकार कबूल करता है जब वो उसे पुकारे और तकलीफ दूर करता है। ये आयत दुआ की कबूलियत की ज़मानत है। मुत्तर बेबस की दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह ने खुद कहा, मैं बेबस की पुकार सुनता हूँ। शर्त यह है कि इंसान वाकई बेबस हो, खुद कफील न समझे। फिर सवाल, अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? ये सवाल ज़मीर को झंझोड़ता है। मुशरिक खुद भी मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, फिर भी शिर्क करता है। पारा 19 3 सूरतों का एक मरबूत पैगाम है। सूरतुल फुरक़ान हमें बताती है जो बंदा बनना चाहता है वो कैसा हो, इबादुर रहमान। सूरतुश्शुअरा हमें बताती है जो लोग अंबिया को नहीं माने वो कैसे तबाह हुए, इबरत व नसीहत। सूरतुन नमल हमें बताती है अल्लाह की कुदरत किस तरह काम करती है, शुक्र, मुशावरत, हकीकत को कबूल करना। तीनों सूरतों का मुश्तरका पैगाम, अल्लाह एक है, उसकी इताअत करो, उसका शुक्र करो, उससे डरो। आज ही एक कदम उठाएं। इबादुर रहमान की 10 सिफ़ात में से कम एक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इख्तितामिया, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनिम वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल फुरक़ान 74 तर्जुमा ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना।
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا تو اسے شیئر کریں، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔